دعا ہی کو اللہ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اسے عافیت کی دعا کرے۔ دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا گیا ہے۔ دعا آفات سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین، نیوز 18 نے اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام شروع کیا جس میں آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کال کرنا پڑے گا۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 180041925154۔ ایک اور نمبر ہے 9989974324 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل، جو بھی بہتر حل ہوگا قرآن اور سنت کی روشنی میں، اس کو پا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب حیدرآباد سے جوڑ رہے ہیں، جو اگلے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ بہت بہت استقبال۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مفتی صاحب، شروعات میں دعا کی اہمیت پر ایک سرسری نظر ڈال دیجیے، اس کے بعد باقاعدہ انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ دعا کی انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے، دین نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس کی 2 نوعیتیں ہیں، ایک تو یہ عبادت بھی ہے اور یہ بندے اور رب کے درمیان ایک اہم ذریعہ بھی ہے، اور یہ مومن کے لیے ایک بہترین حل بھی ہے۔ اور مصائب میں، مشکلوں میں، ہر موقع پر، خوشی میں، غم میں، ہر موقع پر انسان کے لیے ایک حل بھی ہے۔ ہر طرح سے دعا مومن کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس دعا کا اہتمام کریں، اور بالخصوص وہ دعائیں جو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی ہے، ان دعاؤں کو سیکھنے، ان کو یاد رکھنے، جس جگہ پر جو دعائیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو ان مقامات پر اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی مسائل ہے، کوئی دشواری ہے اور اس کا بہتر حل چاہتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے کال کرنا پڑے گا 180041925154۔ یہ ٹول فری نمبر ہے 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں، جب بھی آپ کال کریں برائے مہربانی ٹی وی کا والیوم کم کر دیں، یا جس وقت آپ ہم سے بات کر رہے ہیں اس وقت ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو جائیں، تاکہ آپ کے سوال ہم بہتر ڈھنگ سے سن سکیں اور مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب اس کا بہتر جواب دے سکیں۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ میں کشمیر سے۔ جی نام بتائیے اپنا۔ ہاں، کل مفتی صاحب نے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ ہم پچھلی نمازیں پڑھ سکتے ہیں جو قضا ہوئی ہیں بہت سالوں سے۔ البتہ ہمیں یہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ صرف فرض پڑھنا ہے یا سب سنت بھی پڑھنا ہے اس کے ساتھ؟ چلیے، بہتر 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 انشاءاللہ۔ اپنا نام بتائیے۔ غلام حسن، کشمیر سے۔ غلام حسن صاحب، چلیے بالکل انشاءاللہ بہتر، جو بھی بہتر فرض پڑھنا ہے یا سب پڑھنا ہے؟ بالکل بالکل بتایا جائے گا۔ تو عبدالرحمان صاحب بھائی کا سوال ہے کشمیر سے، کل بھی انہوں نے شاید کال کیا تھا کہ جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اس کو جب ادا کیا جائے، قضا ادا کی جاتی ہے، تو صرف فرض ہی ادا کرنی ہے یا سنت یا نفل جو ہوتی ہیں اس کو بھی ادا کرنا ہے؟ جی، ہم نے کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ صرف فرض ادا کرنا ہے۔ عشاء کی نماز میں چونکہ وتر بھی ہوتی ہے، تو ساری نمازوں میں فرض نماز اور عشاء میں وتر کی نماز ادا کرنا ہے۔ فجر کی 2 رکعت فرض قضا جب پڑھیں گے، فجر کی 2 رکعت قضا پڑھیں گے صرف، ظہر کی 4 رکعت قضا، عصر کی 4 رکعت قضا، مغرب کی 3 رکعت قضا، عشاء کی 4 رکعت قضا اور 3 رکعت وتر۔ یہ ایک دن کی نماز 20 رکعت ہوئی۔ تو جب بھی قضا آپ پڑھیں گے، ایک دن کی ان 20 رکعتوں کو ادا کرنا ہے۔ قضا میں سنت اور نوافل ادا نہیں کیے جاتے، فرض صرف فرض کے قضا ہوتی ہے، اس کے بعد واجب کے قضا ہوتی ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ امید کو آپ کو اپنا جواب مل گیا ہوگا۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ کشمیر سے حفیظ اللہ بول رہا ہوں۔ حفیظ اللہ کشمیر سے، بتائیے حفیظ صاحب۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم تہجد پڑھتے ہیں
तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, इसका टाइम कितने से कितने बजे से कहाँ तक है और कौन से सूरे पढ़ने हैं और कम से कम कितनी रकात पढ़नी है? चलिए बहुत बहुत बस शुक्रिया। यही मेरा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल हाफिज साहब, बिल्कुल बताया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, भाई का कश्मीर से सवाल था, तहज्जुद की जो नमाज हम पढ़ते हैं उसका सही वक्त क्या है, क्या वक्त मुकर्रर किया गया उसके लिए, और कितने रकात पढ़ सकते हैं कम अज कम? जी भाई, इशा का वक्त जैसे ही इशा की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर और फजर तक, इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप कुछ देर के लिए सो गए तो उठने के बाद जो वक्त होगा वो तहज्जुद का शुमार होगा, अगरचे आधा घंटा ही क्यों ना हो। बाज फुक़हा कराम ने यह कहा है कि सोने की भी हाजत नहीं, अगर कोई बेदार है तो वो सुलुसुल रात के 3 हिस्से कर दें तो आखिरी तिहाई जो हिस्सा होगा वो तहज्जुद का वक्त शुमार किया जाएगा। अफजल वक्त तहज्जुद का वही है। उस वक्त में फजर से पहले पहले तक, उस वक्त में आप जो भी नमाज पढ़ेंगे तहज्जुद के नियत से वो तहज्जुद कहलाएगी। तहज्जुद नमाज भी जैसे आम नमाजें होती हैं वैसे ही अदा होती हैं, सिर्फ नियत आपको करनी है कि 2 रकात तहज्जुद की नफल नमाज पढ़नी है। और कुरान में भी इसकी फजीलत आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 नमाजों के साथ साथ तहज्जुद भी फर्ज थी, तो इंतहाई अहम बाबरकत नमाज है। अगर मौका मिले तो जरूर इसको पढ़ना चाहिए। फजर का वक्त आप देख लें अपने इलाके के लिहाज से, वक्त जब शुरू होता है उससे 20 मिनट पहले तक तकरीबन तहज्जुद का वक्त होता है, तो उस वक्त तक भी तहज्जुद आप पढ़ सकते हैं। इसकी 2 रकात से लेकर के 12 रकात तक आप 2-2 रकात करके पूरी नमाजें पढ़ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं बोल रही हूँ चंदोसी, यूपी से। मेरा एक सवाल ये है। हाँ वालेकुम अस्सलाम। मेरा फर्स्ट सवाल है सर, क्या नाम है, मैंने सामने परसों रात ये देखा है कि एक मक्खी आई है, बड़ी वाली मधुमक्खी, और वो मक्खी नहीं आके हमारे कपड़ों में छुप गई है, और फिर वो उससे कोई मक्खी को पकड़ने आया है तो वो मैंने मना कर दिया यहाँ मक्खी नहीं है, कि वो मक्खी कपड़ों में से मैंने उड़ा दी है। और दूसरा ये आपने ख्वाब में देखा है? जी जी मैंने ख्वाब में देखा है परसों रात। हाँ मैंने देखा है एक मक्खी, बड़ी वाली मधुमक्खी स्टेट वाली होती है, वो आई है घर में और वो हमारे कपड़ों में छुप गई है, कपड़े टंग रहे हैं, अब वो आके छुप गई है तो कोई पीछे पीछे आया उसके पकड़ने को, तो मैंने कर दिया यहाँ मक्खी नहीं आई है। फिर वो बात को मक्खी जाके कपड़े हिलाए तो उड़ गई है वो। चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ एक सर मेरा सवाल और है, एक ये है, परसों रात देखा है मैंने ये, और कल देखा है मैंने ख्वाब में एक जो लड्डू नहीं होते हैं जिनपे न्याज लगवाते हैं 10 बीबियों की, वो बहुत सारे लड्डू हैं और हमारी खाला ना उन लड्डुओं को, बने हुए लड्डुओं को तोड़ रही है। अब मैं कह रही हूँ खाला तोड़ रही है ना, कि हाँ मैं इन्हें दोबारा से बनाऊंगी। देखा है सर। चलिए बहुत और दूसरा मेरा ये है कि मेरी गर्दन में थायराइड है सुखाने वाली, मैं कल चेक करा के आई हूँ, थायराइड का मेरा जरूर बता देना। थायराइड है? जी जी 0 आई है, बिल्कुल कम आई है। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा, बेहतर है। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने यूपी से कॉल किया। तो मुफ्ती साहब, बहन के 3 सवाल है, 2 तो इसमें ख्वाब के बताए जा रहे हैं, लेकिन ख्वाब के अमूमन हम जवाब नहीं देते। एक और है, भाई ने थायराइड के लिए बोला है, गर्दन में उनके थायराइड है, अगर इसके लिए कोई बेहतर दुआ हो तो बता दीजिए। जी जैसे आपने कहा है, ये ख्वाबों की ताबीर का प्रोग्राम तो नहीं है, फिर भी कोई ख्वाब ऐसे आ जाता है, कोई सवाल आ जाता है तो हम उसका मुख्तसरन जवाब अर्ज कर देते हैं। याद रखें कि हर ख्वाब ऐसा नहीं होता कि उसकी ताबीर जानी जाए। बहुत सारे ख्वाब हमारी तबीयत पे भी मुनहसर होते हैं, हमारी सोच पर भी उनका अमल दखल होता है। बड़ी तफसील है इसमें। मुख्तसर ये कि आप तीसरा कलमा रोज़ाना 60 मरतबा पढ़ा करें, और बुरे ख्वाबों के असरात से बचने के लिए तीसरा कलमा 60 मरतबा फजर के बाद पढ़ा करें। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये 60 मरतबा पढ़ा कीजिए रोज़ाना फजर के बाद। और कुछ सदका अपनी तरफ से हो सके तो किसी गरीब को खाना खिला दिया कीजिए, या किसी की ज़रूरत पूरी कर दीजिए। कुछ पैसा वगैरह जो आप बेहतर समझते हैं वो बतौर सदका कुछ दिनों तक, 7 दिन 11 दिन, जो भी मुनासिब है आपके लिए,
आसानी से कर सकते हो, 7 दिन या 11 दिन रोजाना कुछ ना कुछ सदका कीजिए, इंशाअल्लाह जो बुरे असरात होंगे ख्वाब के वो नहीं होंगे। और थायराइड के मुतालिक से आपने कहा कि थायराइड का मसला है, देखिए इसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह 66 मरतबा पढ़कर, ला इलाहा इल्लल्लाह 66 मरतबा 66 टाइम्स पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, और बेहतर है गले के पास हाथ रख करके पढ़ें 66 मरतबा, और अपने ऊपर दम कर लें, पानी पर दम करके पानी पी लिया करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला थायराइड की जो तकलीफ होती है उसमें कमी होगी। बिल्कुल, शिफा अल्लाह ताला करे। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हम लखनऊ से बोल रहे हैं। लखनऊ से, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अब्दुल खालिक कलीम। अब्दुल खालिक साहब। जी खालिक साहब बताइए क्या सवाल है? साहब ऐसा हमारी एक जमीन है साझे में 5 जगह, उसके लोग ग्राहक आते हैं लेकिन वो जमीन बिक नहीं पाती है, रुकावट हो जाती है। रुकावट किसकी तरफ? क्योंकि आपने कहा साझे की जमीन है, तो रुकावट किसकी तरफ से? आप जो उसमें शेयर होल्डर हैं, जो और घर वाले हैं, उनकी वजह से रुकावट होती है, कोई और वजह है? नहीं, ये पता ही नहीं चल पा रहा किस वजह से रुकावट होती है, वो छोड़ के चले जाते हैं, लेते नहीं। और दूसरा सवाल है कि एक लड़की की शादी मंगनी हो चुकी है, लेकिन तारीख नहीं रख रहे हैं, उनमें पता नहीं क्या वजह है उनके। चलिए बिल्कुल खालिक साहब, बिल्कुल बेहतर जो भी जवाब होगा वो दिया जाएगा। तो मुफ्ती साहब लखनऊ से खालिक साहब का फ़ोन था। 2 सवाल है भाई कि एक ज़मीन है, लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि साझे की ज़मीन है, मतलब कई हिस्सेदार हैं, वो बेचना चाहते हैं, फ़रोख्त करना चाहते हैं, लेकिन उसमें मामला कुछ बन नहीं पा रहा। दूसरी बेटी की शादी का है, मंगनी हो चुकी है, लेकिन तारीख तय नहीं हो रही है, वो लोग आ नहीं रहे तारीख रखने के लिए। जी भाई, दोनों कामों के इरादे से रोज़ाना सारे घर के अफराद पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, या कम से कम घर के 1-2 अफराद दोनों कामों के पूरा होने की नीयत से ये वजीफ़ा पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में अल्लाह चाहे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको 100 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो आपके दोनों मामलात हल हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? भाई साहब मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। कर्नाटक से। जी भाई बताइए, सवाल कीजिए अपना। भाई साहब मेरे को ये पूछना था कि मेरा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, लेकिन उसमें बरकत जैसी नहीं है, कुछ सेविंग नहीं होता है। किस चीज का बिजनेस है आपका? कौन सी? जी मेरा कंसल्टेंसी ऑफिस है। जी किस चीज का? कंसल्टेंसी। ओ कंसल्टेंसी, ठीक है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बताया जाएगा जो भी बेहतर। आपने कर्नाटक से कॉल किया, तो मुफ्ती साहब भाई का कर्नाटक से कॉल था, बिजनेस चल रहा है लेकिन बरकत नहीं हो रही है उनकी, तो बरकत के लिए कोई बेहतर दुआ हो तो बता दीजिए। जी भाई, इसके लिए सबसे पहला अमल जो है वो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी भी है, वो ये कि नमाज़ों की पाबंदी करें। बिलखुसूस फ़जर की नमाज में रिस्क तकसीम होता है, तो फ़जर की नमाज की पाबंदी करें, और फ़जर नमाज के बाद 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाह हम जो पढ़ते हैं उसके बाद बिहम्दिही जोड़ना है, फिर दोबारा सुब्हानल्लाह बोलना है, उसके बाद सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल अज़ीम जोड़ना है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये फरिश्तों का वजीफ़ा है, बड़ा बाबरकत वजीफ़ा है। बुखारी शरीफ वगैरह में इसकी फजीलतें आई हैं। इसको आप 100 मरतबा पढ़ा करें रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। रिस्क में बरकत के लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह आपके रिस्क में कुशादगी होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जुड़े हुए जो आपके सवालों के इस वक्त जवाब दे रहे हैं, आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 180041925154, ये टोल फ्री नंबर। एक और नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? शेख अबरार बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से। जी अबरार साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे 2 सवाल हैं। जैसे एक तो मेरे ये जो बच्चे हैं ना, वो करीब शहर में जाकर के पढ़ाई करते हैं, तो रोजाना उनको जाना आना रहता है। तो उनकी हिफाजत के लिए जब वो घर से निकले तो उनको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, उनकी हिफाजत बनी रहे। दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि मेरा जो खेत है उसके अंदर मेरे को बोरिंग करवाना है पानी के लिए, तो उसके लिए क्या मशीनों से चेक करवाना चाहिए या कोई उसका कोई वजीफा है जिससे अपन वहाँ पे किस तरीके से अपन बोरिंग करवाएं जिससे अपने को पानी पर्याप्त मिल जाए फसल के लिए? चलिए, बेहतर है। शेख अबरार साहब कोटा से आपने कॉल किया, इंशाल्लाह आपके सवालों का जो भी बेहतर जवाब होगा वो दिया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, भाई का राजस्थान से कोटा से कॉल था, उन्होंने कहा कि बच्चे उनके दूसरे शहर या घर से दूर पढ़ते हैं, रोज़ाना आना जाना लगा रहता है उनका, तो हिफाजत बनी रहे इसके लिए कोई बेहतर अगर दुआ हो, कोई वजीफ़ा हो ताकि वो पढ़कर जाए। दूसरा, वो अपने खेत में बोरिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या बेहतर तरीका है? वहाँ पे कुछ तरीका होगा पता करने के लिए, उस साइंटिफिकली वो पता किया जाए या कुछ और वजीफा कोई दुआ पढ़ के उसको शुरुआत की जाए उसकी? जी देखिए भाई, आपने हिफाजत के मुतालिक से कहा है, ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जितने नाजरीन हैं हमारे, मैं सबसे अर्ज़ करूँगा कि यह अमल आप भी घर से निकलते वक्त किया करें, अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। घर से जब निकलेंगे आप, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन तीनों को मिलाकर पढ़ना है। ये घर से बाहर निकलते वक्त पढ़ना है। ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे वापस आने तक। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ने के बाद सूरे कुरैश लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम, ये जो सूरह कुरैश है, ये सूरत एक मरतबा पढ़ना है। इंतहाई मुख्तसर सूरत है, इसको याद कर लें जिनको याद नहीं है। ये दुआ पढ़ने के बाद एक मरतबा औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके ये सूरत पढ़ लें, पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, इंशाअल्लाह ताला जान की हिफाजत हो जाएगी, हिफ्ज़ व अमान के साथ वापस आएंगे। बड़ा मुजर्रब अमल है, हर मुसलमान को करना चाहिए। जी भाई का एक और सवाल था बोरवेल का, तो क्या उसके लिए कोई तरीका है, कोई दुआ है कि मतलब पानी आसानी से निकल आए ज़मीन से? जी, आप देखिए, जो टेक्निकली जो लोग बताते हैं कि यहाँ पानी निकल सकता है, उनसे बिल्कुल राय मशूरा लें, और जो टेक्निकली आप सपोर्ट ले सकते हैं उनसे बिल्कुल लें। उसके साथ साथ जिस दिन करवाना हो या आज से जिस दिन तक करवाने का इरादा है, रोज़ाना तकरीबन ये वजीफ़ा पढ़ा करें तो इंशाअल्लाह ताला पानी बिल्कुल मुनासिब मकदार में निकलेगा, बरकत होगी उसमें। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, ये 11 तस्बीहां पढ़ना है आपको, 11 तस्बीहां पढ़ना है। अगर बहुत दिन है, उतने दिन पाबंदी नहीं हो सकती, तो कम से कम जिस दिन करवाना है उससे 3 दिन पहले ये वजीफ़ा शुरू करें। तीनों दिन फजर की नमाज के बाद या अल्लाहु या रहमानु या रहीम 11 तस्बीहां यानी 1100 मरतबा ये पढ़ना है। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला मुनासिब मिक़दार में पानी निकलेगा, उसमें बरकत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी श्रीनगर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद इकबाल। जी इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल है, सफर के लिए जो नमाज पढ़ते हैं हम सफर में, तो उसमें क्या सिर्फ फर्ज अदा करनी है या सुन्नत भी अदा करनी है? और दूसरा सवाल है, ये सफर है वो किस मसफत से शुरू हो जाता है, कितनी दूरी से शुरू हो जाता है? ठीक है। सवाल है, ये सफर के दौरान जो नमाज पढ़ते हैं क्या वो इशारों में पढ़ सकते हैं? किस में पढ़ सकते हैं? इशारे में? इशारों में, इशारों में, इशारों में। ओके ओके, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपका जो भी बेहतर हल होगा वो बताया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, भाई का 3 सवाल है। इकबाल साहब हैं श्रीनगर से, कश्मीर से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि सफ़र के दौरान जो नमाज है क्या इशारों में उसको पढ़ सकते हैं, और क्या सिर्फ फ़र्ज ही पढ़ना है, और सफ़र शुरुआत कहाँ से होती है, कितनी दूरी तय करने के बाद सफ़र माना जाएगा उसको?
जी देखिए, तीनों सवाल हम तरतीब के साथ अर्ज करते हैं। सफ़र की जो मसाफत है वो एहतियाती, उलमा चूँकि वो पुराने ज़माने के जो अंदाज थे उसको किलोमीटर्स में तब्दील किया तो उसमें थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ है। एहतियाती कौल यही है कि 92 किलोमीटर्स आप अपने घर से जब चलेंगे या शहर से बाहर हो जाएंगे, आबादी से बाहर हो जाएंगे, तो उतनी मसाफत के बराबर आप अगर सफ़र कर रहे हैं, आपके यहाँ की आबादी ख़त्म होने के बाद से लेकर के 92 किलोमीटर्स का आपने सफ़र का इरादा किया और 15 दिन से पहले लौटने का इरादा है, तो इस सफ़र को, ये सफ़र आपके लिए नमाज क़स्र को वाजिब करता है। ये आप मुसाफिर कहलाएंगे वापस आने तक। अब घर वापस लौटने तक जो भी नमाजें होंगी उसमें आपको क़स्र करना ज़रूरी है। जानते बूझते किसी ने नमाज को क़स्र नहीं किया तो गुनहगार होगा। क़स्र का मतलब ये होता है फ़र्ज़ नमाजें जो 4 रकात वाली हैं उनको 2 रकात पढ़ना है। 4 रकात वाली नमाजें दिन में 3 ही हैं। ज़ोहर में 4 रकात फ़र्ज़ है तो 2 रकात पढ़ना है आपको, असर में 4 रकात फ़र्ज़ है तो 2 पढ़ना है, इशा में 4 रकात फ़र्ज़ है तो 2 पढ़ना है। ये क़स्र, नमाज को क़स्र कहते हैं, मुख्तसर करना, छोटी करना। ये 3 नमाजों में 4 के बजाय 2 रकातें पढ़ेंगे आप। हुजूर की सुन्नत भी है, ये पढ़ना ज़रूरी भी है। इसके अलावा आपको अगर मौका मिले सुन्नतें पढ़ने का तो सुन्नत पढ़ सकते हैं, वरना माफ़ है। सिर्फ 2 रकात पढ़ना है। मगरिब में सिर्फ 3 रकात होंगी आपकी, बाकी पूरे नमाज में, पूरे सफ़र में आपकी नमाज इसी तरह अदा होगी। 15 दिन से कम है तो यह अहकाम लागू होंगे। आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ 15 दिन से ज़्यादा रहने का इरादा है तो आप वहाँ पे वक्ती तौर पे मुकीम कहलाएंगे, आपको पूरी नमाजें अदा करनी होगी। एक और मसला यह है, इमाम के पीछे अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरी नमाज पढ़ेंगे। तन्हा पढ़ेंगे तो क़स्र करेंगे, जमात के साथ, मुकीम इमाम के साथ, वहाँ के रहने वाले जो भी इमाम होंगे जहाँ आप सफ़र कर रहे हैं उस इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो पूरी नमाज पढ़ेंगे। और इशारों का मसला आपने कहा, देखिए औकात तकरीबन ऐसे ही तय करना चाहिए कि जिसमें हमारी नमाजें मुकम्मल अदा हो सकें। कभी किसी मजबूरी के तहत नमाज का वक्त सफ़र में अगर गुजर रहा है, जैसे आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, फ्लाइट में हैं, कहीं भी हैं, अलग से मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने की सहूलत नहीं है, ऐसी गुंजाइश नहीं है, तो बैठे बैठे इशारों से भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। तरीका ये होगा कि आप हाथ बांध कर जहाँ बैठे हैं वहीं जिस तरफ भी हो, सफ़र की हद तक ये गुंजाइश है कि जिस तरफ भी आपका रुख है उसी तरफ रहे। आप हाथ बांध करके क़ियाम में जैसे पढ़ते हैं वो सब पढ़ लें। जितना झुक सकते हैं आसानी से उतना थोड़ा सा झुक करके रुकू कर लें और उससे थोड़ा ज़्यादा झुक करके सजदा कर लें। रुकू सजदे में जो तस्बीहात पढ़ते हैं, तकबीर वगैरह पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें वैसे रहेंगी। सिर्फ आप जैसे पूरा रुकू, पूरा सजदा करते थे, इसमें तखफीफ होगी, बस इतना ही। एहतियात इसमें है, बहुत सारे फुक़हा ने कहा है कि इस तरह पढ़ी गई नमाज को बाद में दोहरा लेना यह बेहतर है। तो एक चीज़ और मुफ्ती साहब, जनाब क़स्र की आपने बात बताया कि 92 किलोमीटर, अलग अलग उलमा ने इसके ताल्लुक से अलग अलग बातें बताई हैं, लेकिन 92 एक आम ख्याल तस्वुर किया जाता है। लेकिन आज के दौर में हवाई जहाज़ से लोग सफ़र करते हैं, सुबह गए शाम में वापस आ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पहले क्या होता, पैदल मसाफत तय होती थी या घोड़े से या ऊँट से लोग जाते थे। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, एरोप्लेन से सफ़र करते हैं, तो क्या वहाँ पर भी ये लागू होंगे, वहाँ पर भी क़स्र लागू होगी? जी बिल्कुल, आप 1 सेकंड में हज़ारों किलोमीटर दूरी क्यों न तय कर लें, लेकिन क़स्र के अहकाम वहाँ भी लागू होंगे, चूंकि ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से रुख्सत है, बल्कि हमारे लिए लाजिम भी है क़स्र करना। तो आप चाहें फ्लाइट से जाएं या किसी और जरिए से जाएं, कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मसाफत भी तय कर लें, उस सूरत में भी सफ़र की हालत में आपको क़स्र करना ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? राशिद अली बोल रहे हैं सर। जी बताइए। जी बताइए, सवाल पूछिए अपना। सर जी, थोड़ा जरा हमारे बच्चे को ये
जरा प्रॉब्लम है, इनको रात को सपने जरा बड़ा खराब दिखाई पड़ते रात में सपने आते हैं? हैं। ये रुद्रपुर हाँ, बुरे सपने आते हैं। हाँ जी, बुरे सपने आते हैं। क्या बच्चे की उम्र कितनी है? इनकी उम्र है सर, दीदी हमारी इनकी उम्र है 32 साल। जी 32 साल। 32 साल 32। हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, इंशाल्लाह बेहतर जवाब दिया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, भाई का फ़ोन था कि रात में बुरे ख्वाब आते हैं, उम्र 32 साल जी। बता रहे हैं, तो कोई बेहतर अगर इसके लिए कोई दुआ हो तो। जी देखिए भाई, सबसे पहले तो सोने से पहले वजू करके सोना चाहिए, बावजू सोना चाहिए। दूसरी चीज, बिस्तर पे पहुंचने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ें। तीसरा एक छोटा सा अमल है, हम अर्ज करते हैं, इसको पाबंदी से पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला बुरे ख्वाब नजर नहीं आएंगे। या मुतकब्बिरू, या मुतकब्बिरू, ये अल्लाह का मुबारक नाम है। इसको 21 मरतबा बिस्तर पर पहुंचने के बाद पढ़ें, पढ़कर सो जाएं, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला बुरे ख्वाब नजर नहीं आएंगे। ये 3 चीजें करें, बावजू सोएं, आयतल कुर्सी पढ़ें बिस्तर पर पहुंचने के बाद सोने से पहले, और या मुतकब्बिरू 21 मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला बुरे ख्वाब नजर नहीं आएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, कोई मसाइल हो, कोई जानकारी चाहते हो तो 180041925154 पर कॉल कर सकते हैं। 9989874324 भी एक नंबर है। मुफ्ती शेख अब्दुर्रहमान अज़हरी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए, जो आपके सवालों के कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी बेहतर हल है वो बता रहे हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। से किशोर बोलना है जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सोनीपत, हरियाणा। जी जी, हरियाणा से बोल रहे हैं। किशोर नाम है। हमारे लड़के की पथरी है पित्ते में, वो बहुत कमजोर हो रहा है और उसकी नौकरी की बहुत पेपर देता है। पित्ते में है, कितने? जी, 2 सवाल है हमारे। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा ये कि उसकी नौकरी नहीं लगती, बहुत मेहनत करता है, फिर वो परेशान होके जो पेपर पूरा नहीं होता उसका रह जाता है 1-2 नंबरों से हमेशा, और तो फिर पढ़ाई में ढील दे देता है, और लेकिन आती मेहनत करता है, जब भी उसकी नौकरी नहीं लग रही। चलिए ठीक है, बेहतर है। दिमाग रहता बहुत कमजोर हो गया। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, बहन का सोनीपत से कॉल था, लड़के की पित्त में पथरी है जिसकी वजह से बहुत दुश्वारियां पेश आ रही हैं और नौकरी को लेकर परेशान है। जी देखिए, आप रोज़ाना फजर की नमाज के बाद सूरह फातिहा इस उम्मत के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम चूंकि हर एक को याद होती है ये सूरत, तो हम उसको आम समझते हैं। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसमें अल्लाह ने शिफा रखा है। फजर के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ करके हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है। पहली बार जब शुरू करेंगे तो औज़ुबिल्लाह पढ़ना है। तो सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ करके उन पर दम किया जाए, और वो खुद पढ़ते हो तो पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, पानी पर दम करके वही पानी दिन भर पीने की कोशिश करें। और सुबह शाम या अल्लाहु या सलामु 111 मरतबा पढ़ने के लिए कहें। ये 2 चीज़ें जारी रखें, अल्लाह ताला चाहे तो इंशाल्लाह वो पथरी निकल जाएगी, और जब तक है तकलीफ कम से कम होगी इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह अल्लाह शिफा दे। और आपने कहा कि नौकरी नहीं लगती, इसके लिए नमाजे इशा के बाद या लतीफू पाबंदी से पढ़ा करें। 100 मरतबा पढ़ना है या लतीफू। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। या लतीफू पढ़ना है इशा की नमाज के बाद, 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद बेहतर मुलाजिमत के लिए दुआ करें, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोई बेहतर नौकरी नसीब होगी। चलिए इंशाल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? नजर बोल रहा हूँ। जी बताइए, सवाल पूछिए अपना भाई। सवाल ये है कि मेरा एक भाई है, उसकी थोड़ा बहुत कमजोर सा है और थोड़ी गले में परेशानी हो रही है, तो उसके थोड़ा ये है कि दवाई भी कर रहा है मगर कोई वैसे फायदा नहीं हो रहा, नहीं पता लगा, इसके लिए कोई दुआ बताएं। गले में भी तकलीफ है?
ہاں جی، اور آندہ ہے والدہ بھی بہت کمزور سی ہو رہی ہے، ان کے لیے بھی کوئی دعا بتائیں تو ہم میرے بھی بتائیں. اور چلیے گھر میں تھوڑی برکت ہو گئی، پیسہ ہو گئے، اس کے لیے تھوڑی برکت بتائیں، کوئی دعا بتائیں اس کے لیے بھی کوئی برکت نہیں ہے. چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. تو مفتی صاحب بھائی کا کال تھا، ان کے ایک چھوٹے بھائی ہیں، ان کو صحت ٹھیک نہیں رہتی، گلے میں بھی تکلیف رہتی ہے، اس کے علاوہ والدہ بھی کافی پریشان رہتی ہے، گھر میں بھی خیر و برکت کے لیے کوئی بہتر دعا ہو تو بتا دیجیے. جی دیکھیے بھائی، آپ ان کو جو بھی دوائی وغیرہ دیتے ہیں تو دوائی علاج آپ جاری رکھیں. کوئی بہتر طبیب ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، اچھا ماہر ڈاکٹر، اس سے بتائیں کہ وجہ کیا ہے دبلے پن کی، کمزوری کی، آپ اس کا علاج کروائیں. اور دوائی وغیرہ جب بھی کھائیں گے اس پر کھانے سے پہلے یا ماجدو یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں ایک ایک بار درود شریف پڑھیں. اور کھانے کا لقمہ جب بھی لیں گے یا واجدو، واو سے ہے یہ، کھانا کھاتے وقت اگر ممکن ہو سکے بیچ میں بھول بھی جائیں کچھ مرتبہ تو کوئی حرج نہیں ہے. کھاتے وقت تقریباً ہر لقمے پر یا واجدو واو سے ہے. دوا پہ جو پڑھنا ہے 10 مرتبہ وہ یا ماجدو میم سے ہے. تو یہ 2 عمل جاری رکھیں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ ان کی صحت بحال ہوگی. اور آپ نے کہا کہ گھر میں برکت نہیں ہے، اس کے لیے نمازوں کی پابندی کریں، اس کے ساتھ ساتھ روزانہ صبح 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی. چلیے انشاءاللہ اللہ شفا دے اور برکت دے. ہمارے ساتھ مفتی شیخ عبدالرحمن اظہری صاحب لگاتار جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے سوالوں کے قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بھی بہتر حل ہے وہ دے رہے ہیں. 180041925154 پر آپ کال کر کے آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. ایک اور نمبر ہے 9989997432 پر بھی آپ 7474324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بولے بہن، کہاں سے؟ ناجیہ بول رہے ہیں اورنگ آباد سے. جی بتائیے کیا سوال، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ مولانا نے بتایا تھے وہ نعمان میں کیا پار کے تھوکنے کا، گھر میں حرکت جو رہتے اس کا. ٹی وی سے بہن تھوڑا سا ٹی وی سے دور ہو جائیے، آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، ایکو ہو رہی ہے، تھوڑا سا دور ہو کے بات کیجیے. مولانا نے بتایا تھے وہ نعمان میں پار کے تھوکنے کا، گھر میں حرکت رہتے اس کو یہ کرنے کا. تو وہ خاتون کا بتایا تو میں جب نہیں سنی تھی، اب میں کو فون لگا میرے کو بتانا پڑا وہ. اور یہ کہ جو بال جو جھڑتے ہیں اس کو کیا پڑھنے کا، اگنے کی بال کے وہ کیا پڑھنے کا، استخارہ کی نماز کے وہ طریقہ بتا دیجیے. بال کا آپ نے کیا پوچھا؟ بال جھڑنے کا؟ ہاں، اگنے کے لیے دوا. چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. اور استخارہ نماز کی. چلیے ٹھیک ہے، بہتر ہے. تو مفتی صاحب بہن نے کئی سوال کیے، لیکن سمجھ میں یہی آیا کہ بال جھڑ رہا ہے، شاید اس کے لیے اگر کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. اور استخارہ کی کرنا اگر چاہتے ہیں تو استخارہ کیسے کیا جائے، اس تعلق سے کچھ جانکاری چاہتے ہیں؟ جی پہلا سوال غالباً برکت کے حوالے سے تھا، گھر میں برکت کے حوالے سے غالباً جہاں تک ہمیں آواز پہنچی ہے. تو گھر کی برکت کے لیے بہن ہم نے بارہا کہا ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ہم ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں، وہ روزانہ پابندی سے پڑھیں، گھر میں برکت ہوگی. وہ یہ ہے کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ روزانہ پڑھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گھر میں خیر و برکت کے لیے، اللہ چاہے تو انشاءاللہ برکت ہوگی. دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ بال جھڑتے ہیں. دیکھیے ہفتے میں ایک دن یہ عمل کرنا ہے، کوئی ایک دن مقرر کر لیں، اس دن ایک وقت متعین کر لیں، اس دن اسی وقت ہفتے میں ایک بار آپ کو یہ عمل کرنا ہے. یا حیو یا قیوم 313 بار پڑھنا ہے. یا حیو یا قیوم آپ پہلی بار پڑھیں گے، پڑھ کر تیل پر دم کریں گے، وہی تیل روزانہ لگایا کریں گے. اور 7 دن کے بعد پھر پڑھ کے اسی میں دم کریں گے. 7 دن کے بعد ایک مرتبہ اس میں پڑھ کر دم کرتے رہیں، وہی تیل استعمال کرتے رہیں. جب یہ وظیفہ پڑھیں تو شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں.
یا حیو یا قیوم یہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو بال جھڑنے کی شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی. اور استخارہ کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے. دیکھیے استخارے کا عمل حدیث میں موجود ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بڑی تاکید کے ساتھ یہ سکھایا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں انسان پسو پیش میں ہو یا نفع نقصان کا معاملہ لگا ہوا ہو, خیر اور شر ہمیں واضح نہ ہوتے ہوں, تو اس میں استخارہ کرنا چاہیے. کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ, کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں, شادی وغیرہ رشتے کے لیے کئی دکان لینا چاہتے ہیں, مکان لینا چاہتے ہیں, اس طرح کوئی بھی کام ہے اچھا ہے یا نہیں, اس کے لیے آپ کو استخارہ ضرور کرنا چاہیے, ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. طریقہ آسان سا طریقہ یہ ہے, عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں, اس کے بعد جو آپ کو ذکر آتا ہے استغفار وغیرہ پڑھیں, اللہ کی حمد کریں, تعریف کریں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, جتنا آپ کو دل کو اطمینان ہو وہ کر لیں. 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, ذکر آپ مطمئن ہونے تک کچھ دیر ذکر کریں. اس کے بعد استخارہ کی دعا عام دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے, وہ دعا پڑھ کے آپ اللہ سے دعا کریں, میرا فلاں معاملہ میرے لیے بھلا ہو تو میرے مقدر کر دے, نہیں تو اس کو مجھ سے دور کر دے. یہ استخارہ کا طریقہ ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, کچھ بھی ذکر کرنا ہے, اس کے بعد استخارہ کی دعا کرنی ہے. بہتر ہے کہ جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں 7 دن لگاتار کریں, ورنہ 1 سے 3 بار بھی کرے تو کافی ہے. 1 دن کر لیا یا کم سے کم 3 دن کر لیا تو بھی کافی ہے. بہتر ہے کہ 7 دن لگاتار کریں. تو انشاءاللہ تعالی اگر بہتری ہوگی تو وہ چیز خود آپ کے مقدر ہو جائے گی. اگر آپ کے لیے نقصان ہے تو وہ چیز خود بخود ہٹ جائے گی. لوگ خواب وغیرہ کی بات کرتے ہیں, خوابوں پہ آج کے ماحول میں ہم جس انداز سے رہ رہے ہیں اس پہ خوابوں پہ اعتبار کرنا, پھر اس کی تعبیر نکالنا بڑا مشکل سا مسئلہ ہے. تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں. کوئی بڑا معاملہ ہو تو کم سے کم 7 دن تک لگاتار استخارہ کریں. پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جس میں آپ کے لیے نقصان ہو وہ معاملہ خود بخود ہٹ جائے گا. اگر بہتری ہو اس میں ایسے راستے بن جائیں گے کہ آپ کو خود وہ عمل آپ کے مقدر ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہم آپ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاپا اکیلے کام کرتے ہیں, گھرداری اٹھاتے ہیں, بہت پریشان ہو جاتے ہیں, بوڑھے ہو رہے ہیں, اور میرے 6 بھائی ہیں, بہت پریشان رہتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے, گھومتے ہیں. ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جس سے کہ ہمارے بھائی سے جڑ کام کرنے لگے. کہاں سے بول رہے ہیں آپ, کون بول رہے ہیں؟ ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. چلیے لکھنؤ سے بات کریں. چلیے بہت بہت شکریہ کال کیا آپ نے. بہتر جو بھی ہوگا اس کا حل بتایا جائے گا. تو مفتی صاحب لکھنؤ سے بہن کا کال تھا کہ ان کے 6 بھائی ہیں لیکن کوئی بھی کام کاج نہیں کرتا. والد صاحب بزرگ ہو چکے ہیں, انہی سے گھر کے اخراجات چلتے ہیں. تو کوئی ایسی دعا, کوئی ایسا وظیفہ ہو جائے کہ بھائی بھی ان کی کچھ نوکری سے جڑ جائے یا کام دھندے میں لگ جائیں تاکہ گھر آسانی سے چل سکے. جی اللہ تعالیٰ آپ کے والد کے ہاتھ پیروں میں طاقت عطا فرمائے اور ان کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا کرے. کہ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ نوجوانوں کی صحیح تعلیم, صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ آوارہ گھومتے رہتے ہیں. بیچارے والدین ضعیف ہونے کے باوجود بھی وہ گھر کی ذمہ داری سنبھالتے رہتے ہیں. اللہ ان حالات میں تبدیلی پیدا کرے, اس کے لیے کوشش ہمیں کرنی ہوگی. بچپن میں بچوں کی صحیح تعلیم, صحیح تربیت ہو تو یہ حالات کم سے کم دیکھنے نہیں پڑتے. آپ بہن روزانہ نماز کی پابندی کریں. عشاء کی نماز کے بعد یا سمیعو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے بھائیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو آپ کا کام بن جائے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ گھر میں خیر و برکت کے لیے, غربت وغیرہ کے خاتمے کے لیے, رزق میں برکت کے لیے یا ملکو 90 بار پڑھا کریں. یہ 2 عمل عشاء کے بعد کر لیں, اس کو جاری رکھیں. جن دنوں میں عشاء کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں بھی ان وظیفوں کو جاری رکھ سکتے ہیں. یا ملکو 90 بار پڑھنا ہے, 90 ٹائمز, اور
या समीओ 100 बार पढ़कर भाइयों के लिए दुआ करना है और खैर बरकत के लिए भी दुआ करें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आपके मामलात सुधर जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोले बहन, कहाँ से? जी महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। सवाल पूछिए। तो पहले भी मौलाना साहब से बात किए थे हमने बच्चे के बारे में जी। कि वो कुछ दूसरे गलत इस पर चले गया था, कोई बाहर की दूसरे गैर कौम की लड़की के साथ में, कोई उम्र इतनी नहीं हुई है उसकी। मौलाना साहब बताए थे या लतीफों का विर्द करो करके, माशाल्लाह अभी सही पर है और अभी पास में भी बैठता है और अच्छे से बात भी करता है जब भी आता है। तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ इस बात के लिए और अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे सारे प्रॉब्लम हल हो जाए और अल्लाह ताला इसका जज़ाए खैर दे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल ये था भाईजान मेरा कि बच्ची के लिए रिश्ता आ रहा है, तो उस मौलाना साहब से ये पूछना था कि वो रिश्ते वालों को, बच्ची का एक्सीडेंट होकर है, अच्छी है अभी मगर पैर में रॉड है, वो बात हम रिश्तेदार उनके वो आने वालों को तय होने के बाद में बताएं या ना बताएं, ये सवाल करना था। और क्योंकि बीच के जो लाने वाले हैं वो लोग बोल रहे हैं कि मत बताओ, जबकि बच्ची के पैर में 2 जगह रॉड है और वो माशाल्लाह सही है, 5 साल हो चुके हैं उसको और जॉब भी करती है स्कूल में, मगर अभी सही है। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, यही सवाल करना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहन, इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मुफ्ती साहब बहन का दुआ कीजिए बच्ची के लिए, अगर सही रिश्ता है तो वो हो जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब बहन ने सवाल किया है कि रिश्ते के ताल्लुक से बच्ची है, उसके एक्सीडेंट में पैर टूट चुका है, उसमें रॉड डली हुई है, तो जो रिश्ते वाले आ रहे हैं उनको रिश्ते से पहले या शादी से पहले ये बात बताई जाए या ना बताई जाए, क्योंकि जो रिश्ता लेके आए वो चाहता है कि ये बात उनको ना बताई जाए, कहीं रिश्ता टूट ना जाए। तो इस ताल्लुक से क्या बेहतर है? जी जी, इससे पहले मैं इनके पहले वाले इस पे आता हूँ कि कुछ दिन पहले यही बहुत परेशान होकर इन्होंने कॉल किया था, अपने लड़के के हवाले से बहुत परेशान थी ये। जी जी। तो देखिए अल्लाह के नामों में और जो हमें कुरान और सुन्नत से वज़ाइफ मिलते हैं इसमें इतनी तासीर है, सिर्फ हमारे यकीन में कमी होती है। हम गाफिल होकर के गफलत से पढ़ते हैं तो तासीर नहीं होती, पूरी तवज्जो के साथ, यकीन के साथ, तवज्जो यकीन ये 2 चीज़ें ज़रूरी है। इसके साथ जो हम बता रहे हैं ये किया जाए तो बिल्कुल नताइज निकलेंगे, 100% नतीजा निकलेगा। इस यकीन के साथ करना चाहिए। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है जो वज़ाइफ बताए जाते हैं पूरी तवज्जो के साथ और यकीन के साथ करें तो बिल्कुल नतीजा निकलेगा अल्लाह चाहे तो कभी मायूस नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारे लिए बेहतरी होती है तो मामलात कुछ ताख़ीर हो जाते हैं, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। दूसरा मामला आपने कहा कि राड है और वो दूल्हे वालों को बताना चाहिए या नहीं। देखिए एक मेजर प्रॉब्लम है ये, आगे चल कर के मामलात ख़राब हो सकते हैं। बेहतर है आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। अगर वो आपके किस्मत में रिश्ता है तो आपके बताने के बावजूद भी वो रिश्ता कायम रहेगा। आपकी किस्मत में नहीं है, यानी जिसकी शादी हो रही है, जिसका रिश्ता हो रहा है, उनके किस्मत में अगर वो रिश्ता नहीं है, किसी न किसी बहाने से वो टूट जाएगा। तो बेहतर यही है तय होने के बाद एक मरतबा उनको बता दें और कैफियत भी बता दें कि कोई इसमें आयब वाली बात नहीं है, 5 साल हो चुके हैं और बिल्कुल रूटीन से ज़िंदगी गुजर रही है, इसको भी वाज़े कर दें और अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें। किस्मत में हो तो बिल्कुल हो जाएगा, वरना कोई ऐसा बहाना बनेगा और वो रिश्ता टूट जाएगा। और हमारा यहाँ एक मशवरा है तमाम नाज़रीन से, आप कोई कारोबार करें या रिश्ते वगैरह का मामला करें, पहले एक मरतबा इस्तिखारा ज़रूर कर लिया करें। बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तमीमा बोल रही हूँ बेंगलोर से। कहाँ से? बेंगलोर से सर। बेंगलोर से जी। सवाल पूछिए बहन। जी हमारा एक बच्चा है, जरा हम पैरों से माजूर है, अपने जा रहे हैं, पैरों से पोलियो है। पैरों से माजूर है? जी जी। क्या उम्र है बच्चे की? 21 साल है सर। है?
21-22 के करीब। 21-22 साल है जी। सवाल पूछिए, क्या सवाल करना चाहते हैं इस सालों से? उसका रिश्ता चाह रहे हैं हम, रिश्ता चाह रहे हैं। ऐसी जगह हो जावे बच्ची जरा अच्छे से मिले, हमें क्या भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बच्ची जरूरत तो बच्चा क्या कुछ जॉब वगैरह करता है, कुछ करता है? है। बहुत काम अच्छा, परिवार भी पढ़ा हुआ है, बच्चा होशियार, बहुत समझदार है। बस उसका यो है, जब गरीब की बच्ची, हमें माल की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए बेहतर है, इंशाल्लाह बताया जाएगा। मुफ्ती साहब, बहन का बेंगलुरु से फोन था, 21 साल का बच्चा, पैरों से माजूर है, हालांकि पढ़ा लिखा भी है, कह रहे तो कोई शादी करना चाह रहे बच्चे का, कोई बेहतर रिश्ता जाए, इसके लिए कोई दुआ हो तो बता दीजिए। जी, आप रोज़ाना लड़के से भी कहें, आप भी पढ़े रोज़ाना फजर की नमाज के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, ये 313 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो मुनासिब रिश्ता आएगा। इस अमल को जारी रखें, नागा होने मत दें। जब भी ये अमल करेंगे, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें और दुआ करें। आप वालिदा हैं, वालिदैन की दुआ बच्चों के लिए बहुत असर रखती है, तो आप दुआ ज़रूर किया करें रोज़ाना अपनी नमाजों के बाद, बिलखुसूस इस अमल के बाद दुआ करें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह मुनासिब रिश्ता होगा इंशाल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बोल रहे बहन, कौन बोल रहे? हम एमपी से बोल रहे हैं भाईजान। हमारा 3 सवाल है। पूछिए भाईजान। हमारे जो हजरत बता रहे हैं तो क्या मुसब्बिबुल अस्बाब ये पढ़ना है, तो ईशा के बाद पढ़ सकते क्या? 12 बजे पढ़ सकते। और दूसरा है कि हम दोनों पढ़ रहे, हम दोनों में भी पढ़ रहे, तो मैं मतलब औरत जात खुले सिर पढ़ सकती है या फिर कलदानी बांध के पढ़ेंगे? और तीसरा के रोजी नहीं है काम, मतलब दिल्ली में है काम, तो इस वजह से कुछ वजीफा हुआ तो बताओ। चलिए, रोजी के लिए कोई वजीफा बताया जाएगा इंशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब, बहन ने 3 सवाल किए, इससे पहले आपने कोई वजीफा इनको बताया था, क्या वो ईशा के बाद पढ़ सकती हैं? और मियाँ बीवी दोनों साथ पढ़ रहे हैं तो क्या वो पढ़ सकते हैं? और इसके अलावा घर में बरकत के लिए, रोजी के लिए कोई अगर दुआ हो तो? जी देखिए बहन, वो जो हमने वजीफ़ा बताया था, अगर मुमकिन हो सके तो दरमियानी रात तकरीबन 12 बजे के आसपास पढ़ना चाहिए। अगर किसी के लिए दुश्वारी होती हो तो फ़ौरन इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। और बहन अगर पढ़ें, यानी ख़वातीन अगर पढ़ें, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ आप पढ़ रही हैं वहाँ किसी गैर महरम की निगाह नहीं पड़ती। आपको ये इस बात का इत्मीनान है तो फिर खुले सर पढ़ना बेहतर है। नहीं आपको ये अंदेशा है कि किसी की नज़र पड़ सकती है, तो फिर आप दुपट्टा और पर्दे का एहतमाम करते हुए इसको पढ़ें। और मियाँ बीवी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और ये अमल ख़ुद रोज़ी के लिए बहुत मुजर्रब अमल है, इंतहाई मुजर्रब अमल है। आप इसको जारी रखें, पाबंदी के साथ पढ़ा करें, पूरी तवज्जो के साथ, यकीन के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो रोज़ी का जो भी मामला है, मसला है, हल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं मोहम्मद हुसैन कारगिल से बोल रहा हूँ। जी बताइए भाई, क्या सवाल, क्या जानना चाहते हैं? अभी मौलाना साहब बता रहे थे कि ये इस्तिखारा करना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। तो इस्तिखारा कैसे किया जाए, इसका तरीका क्या है और क्या हमने कैसे पढ़ा? तो आपने प्रोग्राम देखा, उसमें इस्तिखारा का तरीका भी बताया गया था? नहीं, उस वक्त नहीं देखा, मैंने अभी ही छोड़ा था टीवी। अच्छी बात है, थोड़ी देर पहले। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बोलेंगे, एक बार फिर दोबारा बता दें। और कोई सवाल? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुफ्ती साहब, हुसैन साहब का फ़ोन था करगिल से, इस्तिखारा का इससे पहले हमने बताया था, शायद वो समझ नहीं पाए, तो कैसे करें इस्तिखारा, उसको एक बार दोबारा बता दीजिए। भाई, इस्तिखारा जो होता है, इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है। उसके बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो भी जितने बार भी आपको इत्मीनान हो उतनी देर कुछ जिक्र करें। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है इशा के बाद। उसके बाद कुछ देर जिक्र करना है। उसके बाद आप ये दुआ पढ़ें इस्तिखारा की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका। ये थोड़ी सी बड़ी दुआ है,
یہ دعا عام دعاؤں کی کتابوں میں بھی مل جاتی ہے. تو یہ دعا پڑھیں, اس کے بعد آپ اپنا جو بھی معاملہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ مولا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے مقدر کر دے, میرے لیے اس میں نقصان ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے. ان الفاظ کے ساتھ آپ دعا کریں. بہتر ہے 7 دن کریں. 7 دن لگاتار نہیں کر سکتے تو کم سے کم 3 دن ضرور کر لیا کریں کسی بھی معاملے کے لیے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی, تو وہ معاملہ خود بخود آپ کے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے. اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ چیز خود بخود آپ سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں, پرویز احمد. جی پرویز بھائی بتائیے کیا سوال ہے, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ مولوی صاحب سے کہ اگر کوئی مسلمان زہر جی بولیے, سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان زہر کھا کر خودکشی کرے گا, اس کا جنازہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جنازہ آئے گا نہیں, مطلب جنازہ پڑھنا درست ہے نہیں, یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ شکریہ. چلیے بہت بہت شکریہ. سوال پورے طریقے سے سمجھ میں تو نہیں آیا, لیکن مفتی صاحب پرویز صاحب کا تھا فون کی, اگر کوئی شخص زہر کھا کر خودکشی کر لیتا ہے تو اس کا جنازہ آئے گا یا نہیں آئے گا, یا تو میرے خیال سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے یا نہیں, یہ شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں بھائی. جی بالکل, غالباً یہی سوال ہے کہ کوئی خودکشی کر لے تو اس کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں. دیکھیں بھائی یاد رکھیں, خودکشی کرنا بہت بڑا جرم ہے. زندگی اس روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے. آپ پوری دنیا مل کر بھی ایک انسان کی زندگی کو لوٹا نہیں سکتی, تو اتنی بڑی نعمت انسان اپنے ہاتھوں سے ختم کر دے تو کتنا بڑا جرم ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ انتہائی بدترین قسم کا حرام ہے. انسان کو کبھی اس طرف پہل نہیں کرنا چاہیے. اگر کچھ حالات کی وجہ سے کسی نے کر لیا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, اس کا وبال الگ ہے, اس کی تفصیلات الگ ہیں. لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ بات متفقہ طور پر یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. یعنی جو شخص گناہ کبیرہ میں ملوث ہو, بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو, کوئی اس سے برا کام ہو چکا ہو, تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. کسی شخص نے خودکشی کر لی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. چلیے بہت بہت شکریہ. وقت بھی اجازت نہیں دیتا. مفتی شیخ عبدالرحمن اظہری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. تو ناظرین, پیر تا جمعہ آپ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں. السلام علیکم.